ٹیکسوں کے نفاذ اور بجلی کے بلوں کے خلاف تاجروں اور جماعت اسلامی کی ہڑتال۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بازار بند۔ لاہور میں ہڑتال پر تاجر تنظیمیں تقسیم۔ فیصل آباد کے چوک گھنٹہ گھر میں دکانیں بند کرانے پر جماعت اسلامی کے کارکنوں اور تاجروں میں جھگڑا۔ ایک دوسرے پر تشدد، پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ راولپنڈی میں تاجروں کا احتجاجی مظاہرہ، سڑک بلاک کر دی۔ کوئٹہ میں تاجروں کا ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف مظاہرہ۔ پشاور میں ریلی۔ احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد میں ریڈ زون جانے والے راستے بند۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تاجروں میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ملک بھر کی تاجر تنظیموں نے ہڑتال میں شرکت کی۔ ANP کی جانب سے بھی ہڑتال کی حمایت۔ مرکزی صدر ایم الولی نے کہا حکومت اور اشرافیہ اپنے خرچے ختم کریں تو عوام پر ٹیکس خود ہی کم ہوں گے۔ تاجر 2 اسکیم پر کسی پریشر میں نہیں آئیں گے، اس فیصلے سے کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل نے واضح کر دیا۔ جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجتماعی ناکامی ہے کہ 76 سال میں ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکام رہے۔ تاجر 2 اسکیم کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ دکانداروں کی آمدن کا تعین علاقوں کے سروے کی بنیاد پر کیا گیا۔ صرف 0.4% پر 60,000 روپے ماہانہ ایڈوانس ٹیکس لگایا۔ اگر ہم غلط ہیں تو شواہد کے ساتھ ثابت کریں، مگر ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا۔ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ 1 درجہ بہتر کر دی۔ پاکستان کی ریٹنگ CAA2 کر دی گئی۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت کا منظرنامہ مثبت ہے۔ پاکستان کی لیکوڈیٹی صورتحال میں معمولی بہتری اور ڈیفالٹ رسک میں کمی بھی ریٹنگ بہتر ہونے کا سبب ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، کئی سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ شارع فیصل کلیئر، کچھ سڑکوں سے پانی نکال دیا گیا۔ کئی علاقوں میں ٹوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے امتحان بن گئیں۔ پانی گڑھوں میں بھر گیا، پیدل تو کیا گاڑی میں جانا بھی دشوار ہو گیا۔ ممکنہ تیز بارشوں کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کا کل تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ شہر میں مختلف حادثات میں 3 افراد جان سے گئے۔ سول ایویشن نے چھوٹے طیاروں کو اڑان بھرنے سے روک دیا۔ بارش کی وجہ سے کراچی ایئرپورٹ کی چھتیں بھی ٹپکنے لگی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے بارش کے پانی کو روکنے کے لیے جگہ جگہ بالٹیاں رکھ دیں۔ کراچی میں اگلے 3 روز میں 150 سے 200 ملی میٹر بارش کا امکان۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے خبردار کر دیا۔ حیدرآباد اور میرپور خاص سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں موسلادھار بارشیں۔ حیدرآباد میں کل اور میرپور خاص میں اگلے 2 روز سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ میرپور خاص میں 2 روز پانی برستا رہا اور پانی کی نکاسی کی مشینیں ٹرکوں میں پڑی رہیں۔ ڈرائیورز کے مطابق کسی نے مشینیں اتارنے کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ میئر کے مطابق پانی نکالنے کے لیے مشینوں کا استعمال شروع کیا جا رہا ہے۔ سجاول، میہر اور ڈگری میں بھی بادل کھل کر برسے۔ مکانوں اور دکانوں میں پانی داخل ہو گیا۔ تھر پارکر، ٹنڈو محمد خان اور سانگڑ میں بھی تیز بارشیں۔ خیرپور میں دریائے سندھ کے متعدد مقامات پر شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ حیدرآباد میں مکان کی چھت گرنے سے بچہ جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، ملتان کے مختلف علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ گجرات اور حافظ آباد میں بھی گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگ گئی۔ سرگودھا، راجن پور، بہاول نگر سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی وقفے سے بارش جاری۔ بہاول نگر میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ راجن پور میں سیلابی پانی سے حفاظتی بندوں میں شگاف کا خطرہ، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاموں میں مصروف۔ ملتان میں مکان کی چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں چھتیں گرنے، کرنٹ لگنے سے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس۔ انتظامیہ کو بارشوں کے پیش نظر الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کالعدم TTP حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے، اس کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان میں حملوں میں کالعدم TTP کے ملوث ہونے سے متعلق UN نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کو آگاہ کر دیا۔ UN نمائندے کی قیادت میں وفد نے وفاقی وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، محسن نقوی نے کہا پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے اور اس ضمن میں ہر ممکن کردار ادا کر رہا ہے۔ جلد افغان مہاجرین کی واپسی کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا۔ ویزا اور دیگر قانونی دستاویزات کے بغیر کسی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ حکومت سے ناراضی قابل قبول ہے، ریاست سے ناراضی نہیں بنتی۔ پاکستان نے بلوچ کو عزت دی ہے، آج ملک کا صدر بلوچ ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے کوئی ملک نہیں توڑ سکتا۔ ہماری بقا پاکستان کے ساتھ تھی اور رہے گی۔ طلباء میں اسکالرشپ کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا بے روزگاروں کو آسان اقساط پر قرضے دیں گے۔ سابق صدر عارف الوی کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور ناراض رہنماؤں سے ملاقات۔ ذرائع PTI کے مطابق سابق صدر نے عاطف خان، جنید اکبر اور شکیل خان سے ملاقات کی۔ عارف الوی نے رہنماؤں کو وزیر اعلیٰ کے خلاف بیانات دینے سے روک دیا۔ عاطف خان اور دیگر رہنماؤں کی عارف الوی کو مخالفانہ بیان نہ دینے کی یقین دہانی۔ عارف الوی کی رہنماؤں کو جلد بانی PTI سے ملاقات کی یقین دہانی۔
बैंकों के सारिफीन को 5 लाख रुपए फी अकाउंट तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी दे दी। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पहले डिपॉजिट पर तहफ़्फ़ुज़ 2.5 लाख रुपए तक था। IMF ने इन मसाइल को हल करने की शर्त रखी है। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा कि ये सारी चीज़ें IMF ही हमें क्यों बताता है, हम खुद क्यों नहीं करते। डेप्यूटी गवर्नर ने कहा कि गवर्नर इरशद हुसैन के दौर में इस पर सोचा गया, ताहम उस वक्त IMF नहीं माना। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 25,000 रुपए माहाना वजीफे पर 6,000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। हुकूमत नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले मरहले का दौरानिया 6 माह है, जिसमें गुज़श्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी की सेनेटर अजहर अबानी की रिहाइश का आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने पीपी रहनुमा अजहर अबानी से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का निजी बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। मुजाविजा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस के इल्तवा के बाइस जरूरी है। जजेस बढ़ने से केसेस की बरवक्त समाअत फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल में कहा गया है कि साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की जरूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर जरूरी दबाव में कमी होगी। बिल कौमी असम्बली के मंगल को होने वाले इजलास में पेश होना था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगी। चीफ जस्टिस को खुद तौसीह से इनकार करना चाहिए। शरीफ खानदान की वजह से मुल्क इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मैंडेट छोर अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर गैर आइनी इक़दाम कर रही है, जिसके भयानक नताइज होंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब। इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह 7 सबमरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। PTA के मुताबिक एक केबल की मुरम्मत कर दी गई है। इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी। दूसरी केबल में खराबी अक्टूबर के आगाज तक ठीक होने का इम्कान है। मेटा के साथ टेक इट डाउन का मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत किसी की भी नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हटाई जा सकेंगी। सेनेट फंक्शनल कमेटी में कौमी कमीशन बराए बच्चों के हुकूक की चेयरपर्सन आयशा रजा का इजहार ख्याल। विफाकी वजीर आजम नज़ीर तार ने कहा कि मेटा के साथ मिलकर ऐप बनाई है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे रिपोर्ट करेंगे तो फौरी काबिले एतराज़ मवाद हट जाएगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हुकूमत नूर मुकदमे की पैरवी कर रही है। जाहिर जाफर की अपील का मुकदमा 3 से 4 माह में सुप्रीम कोर्ट से निमट जाएगा। बानी PTI की रूपोश पार्टी रहनुमाओं को रूपोशी खत्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियां देने की हिदायत। कहा वो खुद कैद हैं, बाकी रहनुमा भी डर को छोड़ें, गिरफ्तारियां दें। उन पर जो भी इल्जाम है उसका सामना करें। गिरफ्तारियां देकर अदालतों से जमानतें हासिल करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान PTI के सियासी मसीहा बने हुए हैं। PTI वाले रोज फजलुर रहमान के पास पहुंच जाते हैं कि मुश्किल से निकलने का नुस्खा बताओ। फजलुर रहमान PTI से चुन चुन कर माजी के बदले ले रहे हैं। फजलुर रहमान एक मिस कॉल देते हैं, PTI वाले भागे भागे मिलने पहुंच जाते हैं। फैसलाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। ATC फैसलाबाद का अली अमीन गंडापुर को 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात के 4 मुकदमात में नामजद हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को आइंदा जलसे की इजाजत दे दी। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने पर PTI क़यादत के मशकूर हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत के केस में बयान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इंतजामिया आखिरी रात ही NOC मुअत्तल करने का क्यों बताती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं और बाद में पता चलता है कि जलसा मुलतवी हो गया है। पहले ही बता दिया करें। सिक्योरिटी खदशात पर जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। ये लोग एक पार्टी के हामी होने से पहले पाकिस्तान के शहरी हैं।
क्या अच्छा लगेगा कि कमिश्नर को बुलाकर शो कॉज नोटिस जारी करूं? अदालत ने केस ज़ेर इल्तवा रखते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का एहतजाज, डी चौक की तरफ मार्च, धरना दे दिया। डी चौक कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के वक्त की यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के धरने में डी चौक आमद। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन से इजहार यकजहती। जिला खैबर की वादी तीरा गुज़श्ता रोज फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा और रज़ाई में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरों, जवानों और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। ISPR के मुताबिक शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। हर सूबे में मोटरवे हैं, सिंध में नहीं है। NHA अपने मयार के मुताबिक नई मोटरवे क्यों नहीं बना लेता? सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स। M9 मोटरवे के अतराफ के रिहायशियों, होटल्स, पेट्रोल पंप्स को रसाई ना देने के केस में कहा, GT रोड पर एक लाइन बढ़ाकर मोटरवे में बदल दिया जाता तो शहरों का क्या हाल होता? NHA के वकील ने कहा कि M9 मोटरवे पर 40 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी हुई है। हुकूमत मोटरवे बनाने के लिए सिर्फ जमीन फराहम करती है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि कोई नया पुल नहीं बनाया, सड़क पर सड़क बनाकर 40 अरब रुपए खर्च कर दिए। पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए मरकजी अहमियत के हामिल हैं। मुशाहिद हुसैन का पाक चीन इंस्टीट्यूट की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI और MQM समेत 8 जमातें शरीक हुईं। सब ने CPEC के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का ऐलान किया। महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सरे फहरिस्त। गुज़श्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी 18% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के निर्खों और टैक्सों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफा। बिजली के बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सों में इजाफे पर तशवीश 6% इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्की समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। सिपाही मकबूल हुसैन का छठा यौम वफात। 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 अगस्त 1965 को जख्मी हालत में सिपाही मकबूल हुसैन को भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया। बदतरीन तशद्दुद के नतीजे में मकबूल हुसैन कुव्वत गोयाई से महरूम और जहनी तौर पर माजूर हो गए थे। ऑलराउंडर शकीबुल हसन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम को दस्तयाब होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शकीबुल हसन को वतन वापस नहीं बुलाया जाएगा जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते, खेलते रहें। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध प्रीमियर लीग के वक्त की मुलाकात। सदर ने कहा कि सिंध में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे, तरबियती सहूलियात बेहतर बनाने की जरूरत है। जदीद क्रिकेट स्टेडियम्स की तैयारी के लिए मुश्तरका मनसूबों के इम्कानात पर गौर किया जाए। सदर मुमलिकत के वक्त को सिंध में क्रिकेट की हौसला अफजाई, फरोग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वफ़द ने सदर मुमलिकत को SPL की शर्त भी पेश की। और सयाहत के फरोग के लिए धीरकोट आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ा सयाहती मेला इख्तिताम पजीर। पहाड़ों की बलखाती सड़कों पर जीप रैली और पैराग्लाइडिंग। दिलकश मौसम में मिली नगमों और लोक गीतों ने समा बांध दिया।